So we are here to discuss about AC voltage applied on inductor. On an inductor. Now, to understand this, we have to have a very simple circuit diagram. We have an inductor, that is a coil, simple coil, and we have an AC source, typical AC source having no complicacy, and that's all. Now, this voltage source can be indicated as V is equal to V naught sine omega t. As usual, even in resistance case, we consider this. And this is nothing but an inductor, so we call it L. This circuit, we can use Kirchhoff's law in this, and we can say summation of all voltage sources, that is E function of time, is equal to 0. I am following strictly NCERT symbols and norms. That means, in simple words, we can say V is equal to L ddt of I. What is this? L ddt of I is nothing but, we talk about rate of change of current in an inductor. So the resistance, the voltage source, this together, L and ddt of I together makes the potential difference in this L inductor. L is a constant and ddt of I is the rate of change of current. So with this, we have a typical Kirchhoff's law, and if you want to rewrite this, we can write V minus L ddt of I is equal to 0. This is one equation. We can easily handle this equation. Now, from this, we can simply write ddt of I, that means ddt of I is equal to, we can take V other side, and we can simply take this whole equation as V by L. Now V is nothing but V naught sine omega t. In NCERT they have considered this to be V max sine omega t. I'm sorry for change because slight change is quite natural. I can write here, this is V naught sine omega t by L. Now this can be rewritten as dt integration of I. Remember, this is not just cross multiplication, we are doing many things in it and handling it. So this is equal to cross multiplication, not cross multiplication, so we can write this as V naught L can be taken out, integration of sine omega t dt. That means this V naught L by L is a constant, means it cannot be variable with respect to time. L of course is a constant because you cannot change the inductor, you are not showing it as a variable one, it's a fixed one. And maximum V naught, that is maximum voltage of the source, that is also a constant for the time being. You cannot change it because you are giving fixed supply, so you are going to remain the same. Now this is going to be, if you open this, integrate this is going to be I, that implies I is equal to V naught by omega L and sine omega t. This omega has come for sine omega t, integration of sine omega t dt, and you call it cos omega t and a constant. This is the equation. What we are doing actually, we are moving towards the current equation. हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हम current equation में move कर रहे हैं. Main target हमारा और कुछ नहीं है, बस current equation में move करना. So जैसे हम current equation में move किए, हमें क्या मिल गया इसमें? Obviously we get a structure that we are getting this value V naught. Sorry, this is एकदम clear नहीं हो रहा है. V omega जैसा लगा, V naught by omega L cos omega t. Now एक चीज मैं यहाँ करके दिखा दूँ आपको, माइनस कॉस, ये मैथमेटिक पूरा ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रिक्स है. माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू नथिंग बट साइन ओमेगा टी माइनस
पाई बाई 2, पाई बाई 2। अगर ऐसा है तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर जो इधर के जो इक्वेशन है मैं इसको लिख सकता हूँ, देयरफॉर I इज इक्वल टू आई एम साइन कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। आई एम क्या है, आई एम कहाँ से आ गया, पाई बाई 2। ये जो आई एम है, आई एम इज नथिंग बट इज इक्वल टू वी नॉट, वी एम बोलो या वी नॉट बोलो, इट्स ऑल द सेम। आई होप सिंबल विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। वी एम ओमेगा एल, ये आपके सामने क्या आ गया, ये जो चीज है ये जो आया ये है हमारा मैक्सिमम करंट। तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आया, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस ए कांस्टेंट। अब मजे की बात है, कांस्टेंट ये हमेशा आप करते हो इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को कैसे हैंडल करोगे, इस कांस्टेंट को कैसे हैंडल करोगे। इन केस t इज इक्वल टू 0, इन केस t इज इक्वल टू 0 क्या हो के क्या खड़ा हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 cos 0 इज 1, दैट इज आई एम, सो i इज इक्वल टू आई एम। कांस्टेंट क्या होगा फिर, दैट इज दिस, ये क्या होगा t 0, ये cos ओमेगा t हो जाएगा 1, cos ओमेगा 1 मतलब i इक्वल टू आई एम प्लस कॉन्स्टेंट, सो कॉन्स्टेंट इक्वल टू आई माइनस आई एम। सो आप इसके वैल्यू जैसे ही लगाओगे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगा, हमारे सामने इक्वेशन आके खड़ा होगा टिपिकल। सिर्फ आई कांस्टेंट को आप अनदेखी कर सकते हो फिलहाल इसमें, क्योंकि आई इज इक्वल टू 2 आई एम कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ये आपका मेन इक्वेशन है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो है ये जो आया आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई, ये जो ओमेगा एल है इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये है हमारा ओमेगा एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू, एक बात हमेशा याद रखना, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, ये जो ओमेगा एल है एक्सएल ये रेजिस्टेंस है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। मजे की बात देखो क्या है, अगर ऐसा होता है तो आप ये बोल सकते हो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा क्या है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एल। ये फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी है, जो आपका सोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सोर्स, जो आपका एसी सोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये तो है ही, देखो इंडक्टर एल जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल यूज्ड टू मेक द इंडक्टर, ये सब इंक्लूडेड है, ये कांस्टेंट है फॉर द टाइम बिंग। ये फ्रीक्वेंसी 2 पाई में आप कुछ नहीं कर सकते, कांस्टेंट है। यानी कि ये रेजिस्टेंस एक्सएल जो है ये पूरी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दोगे सोर्स का तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा देगा, फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे एल रेजिस्टेंस कम देगा। यानी कि दिस इज आवर न्यू इनोवेशन, वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक उसी तरह हम कैपेसिटर में देखेंगे, देखो रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करो, रेजिस्टेंस की केस पूरा अलग था, ये लगभग ओम्स लॉ मान के चल रहा था, और ओम्स लॉ विद एसी सोर्स, हमें कहानी अलग मिला था। इसमें देखोगे कंप्लीटली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस आया, उसमें क्या था वी एम या वी नॉट बाई आर आया था, आई नॉट मैक्सिमम करंट। यहाँ उल्टा केस आ रहा है पूरा, सो दैट इज वन सीरियस इशू फॉर अस, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट resistance, what technically we call as inductive reactance. So please take care of this. With this we next topic will discuss with power. इसके बाद इसके पावर देखेंगे, और मजे की बात है पावर जो है वो 0 होगा इंडक्टर में, सबसे मजे की बात यही होगा। आई होप इट्स क्लियर।